Welcome all in economics class. Today we are starting our next chapter, chapter number 12, forms of market. Forms of market. Here in this module we will study about first the market, what is market, and then we will study about the different kind of market. So market is a mechanism और arrangement. Generally जब हम market की बात करते हैं तो हम एक particular place या particular region इस तरह से हम बताते हैं कि दैट इज़ अ मार्केट. बट इन इकोनॉमिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट, it has special meaning. It does not refer any geographical area where goods and services are sold and purchased. In the economics, the concept of market refers to all that mechanism, or we can say all such system or arrangements that bring the buyers and sellers in contact with each other to settle the sale and purchase of goods. It does not refer to any geographical area, any shopping complex और any सब्जी मंडी, अनाज मंडी, एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम इसमें बात नहीं करते हैं, बल्कि वो सारा मैकेनिज़्म जिसमें कि बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और सेल और परचेज ऑफ गुड्स जो है वो सेटलमेंट हो रहा है. तो मार्केट लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ ऑल्सो द एग्ज़ाम्पल ऑफ द मार्केट. उसमें हम क्या कर रहे हैं, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप लोग जो है सेलर और बायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और म्यूचुअल सेटलमेंट होता है परचेज और सेल को लेकर के, एंड देन वी डू द शॉपिंग. तो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केट. तो मार्केट में हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को रेफ़र नहीं करते हैं इन द इकोनॉमिक्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. मार्केट स्ट्रक्चर को हम जनरली कंपटीशन के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं. So in that we classify in two ways: perfect competition and imperfect competition. As I explained you about the perfect competition in the last chapter in short, now we will study about the perfect competition and imperfect competition broadly. तो पहले हम पढ़ेंगे perfect competition के बारे में. Perfect competition is a market structure where there are large number of buyers and sellers selling identical products at uniform price with free entry and exit of firms and absence of government control. So here you can see perfect competition is that market structure or that market form in which there are large number of sellers and large number of buyers, and no seller and no buyer has the control over its price. All the firms are very free to enter and exit from the market, and there is no control of government. Under perfect competition, as I explained, that price remain constant. Therefore, average and marginal revenue curves coincide each other. In the chapter revenue, we have read that under perfect competition, price has decided by the market, and there is no control ऑन द प्राइस ऑफ द फर्म. फर्म का अपनी प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. फर्म अपने प्रोडक्ट को उसी प्राइस पर सेल कर सकती है जो कि मार्केट में डिटरमाइन हुई है. तो यहाँ पर हमने देखा था एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू एंड बोथ द कर्व कोइंसाइड ईच अदर, एंड ड्यू टू विच AR इज इक्वल्स टू MR, और AR और MR कर्व हमें जो मिला था दैट वॉज parallel to the x-axis. You can see in this figure also. In the first figure एक इंडस्ट्री का फिगर है जहाँ पर प्राइस डिटरमाइन हो रही है. प्राइस डिटरमाइन कब होती है? जब मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस वर्क कर रही है, एक कमोडिटी की डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाती है. एट दैट पॉइंट price is determined in the market. You can see in the first figure DD is the demand curve and SS is the supply curve. तो डिमांड कर्व हमने बनाया यहाँ पे एक कमोडिटी का,
और उसी कमोडिटी का हमने यहाँ सप्लाई कर्व बनाया। तो जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर हमारी प्राइस डिसाइड हुई है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री हम किसे कह रहे हैं? सारी फर्म्स को मिला करके जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है हम उसे इंडस्ट्री कह रहे हैं। तो इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमाइन हुई है, डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इक्वल हो रहे हैं वहाँ पर प्राइस डिटरमाइन हुई है। अकॉर्डिंगली इन द नेक्स्ट फिगर यू कैन सी एक फर्म का डिमांड कर्व बना हुआ है। आई टोल्ड यू दैट AR curve is the demand curve for a firm. Here you can see जहाँ पर प्राइस डिसाइड हुई है उसी लाइन में हमने आगे देखा नेक्स्ट फिगर में AR is equals to MR. We all know in the perfect competition average revenue and marginal revenue curve are parallel to x-axis. It is a horizontal straight line. Price is equals to AR is equals to MR. So this is the demand curve. In the second figure I have shown the demand curve of a firm in the perfect competition. Here AR is equals to MR is equals to price line. P is the price line. So a firm can sell any amount of commodity at the existing price. It cannot influence the market price. Accordingly, a firm under perfect competition has no control over its price. Now we will read about the features of perfect competition. In the perfect competition, as I told you, price is determined by the industry on the basis of demand and supply forces, and a firm can take decision regarding only output. कितना आउटपुट उस फर्म को सेल करना है, अपने आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन फर्म को खुद को लेना है, लेकिन प्राइस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन फर्म खुद नहीं ले सकती है इन अंडर द परफेक्ट competition. Now we will study about the main features of the perfect competition. First feature, as we have read in the definition, very large number of buyers and sellers are there and they sell the commodity. लार्ज नंबर, इतने लार्ज नंबर में होते हैं बायर्स और सेलर्स कि एक इंडिविजुअल बायर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, एंड सिमिलरली सेलर भी एक इंडिविजुअल सेलर इतना छोटा पार्ट होता है पूरे मार्केट का कि वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स कि सिंगल सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है सप्लाई को, और सिंगल बायर कांट इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द कमोडिटी. तो यहाँ पर प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड दे कांट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सेकेंड फीचर इज द होमोजीनियस प्रोडक्ट. देखिए होमोजीनियस, यू ऑल नो होमोजीनियस मीन्स सेम, आइडेंटिकल. ऑल द प्रोडक्ट्स इन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जितनी भी फर्म्स हैं वो जितने भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक जैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. होमोजीनियस मीन्स आइडेंटिकल इन द शेप, साइज, कलर, वेट, हर तरह से. इन एवरी रेस्पेक्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे आर होमोजीनियस. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रहा है. बायर्स कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट फर्म्स, एंड ड्यू टू विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ऑल द फर्म्स इज सेम. इसीलिए सबका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है और फर्म का अपनी प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है. प्राइस इज सेम फॉर ऑल द फर्म्स सेलिंग द सेम कमोडिटी. थर्ड इज द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन द मार्केट. देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म. एक फर्म फ्री है, वो कभी भी एंटर कर सकती है इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए, और अगर उसे लगता है कि प्रोडक्शन में फ़ायदा नहीं हो रहा है
तो फर्म इज़ फ्री टू लीव द इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हमें ये बात और समझ लेनी चाहिए कि हम यहाँ शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट पीरियड वी ऑल नो in which a firm leave the industry as well as too short for new firm to join the industry. But when we talk about the long period, तो long period तो enough time होता है किसी भी firm के पास में। एक firm एक existing firm का industry को easily leave भी कर सकती है और easily new firm entry भी कर सकती है। तो in the long period we are talking about here in the long period a firm is free and it is the enough time for the firm is free to enter and exit from the industry in the long run। कोई restrictions उनके ऊपर नहीं है। Fourth is the perfect knowledge. All the buyers have the perfect knowledge about the price. जो भी प्राइस मार्केट में चल रही है उसके बारे में हर बायर को पूरी नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है। बायर्स and sellers both are fully aware of the prevailing price in the market. They are aware of the product, अवेयर ऑफ द प्राइस, कौन सा प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है सभी को पता है। तो वहाँ पर कोई चीटिंग नहीं हो सकती है और कोई एनी प्रोड्यूसर कैन नॉट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। सब प्रोड्यूसर्स को पता है, सब कंज्यूमर्स को पता है। तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी हायर प्राइस चार्ज नहीं की जा सकती है। हायर प्रॉफिट थ्रू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं हो सकता है बिकॉज बायर्स आर वेरी अवेयर एंड दे हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। नेक्स्ट इज द परफेक्ट मोबिलिटी। फैक्टर्स लाइक लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन फर्म टू द अदर फर्म। जहाँ पर भी उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जहाँ पर भी उनको अपनी प्राइस ज़्यादा मिलेगी, दे कैन मूव टू दैट इंडस्ट्री। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल। दे विल मूव टू दैट इंडस्ट्री वेयर दे गेट द हायर प्राइस। जहाँ पर भी उनको रेम्यूनरेशन, उनको अपनी प्राइस ज़्यादा मिलेगी, वो वहाँ पर मूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्म फैक्टर प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। तो ये एक इसका फीचर है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक लेबर को, फॉर एग्जांपल एक लेबर को किसी और दूसरी इंडस्ट्री में अपनी ज़्यादा प्राइस मिल रही है, फर्म ए में उसको 400 रुपीज़ पर डे मिल रहा है फॉर एग्जांपल, और फर्म बी में उसको 450 रुपीज़ पर डे मिल रहा है, तो वो इजीली एक फर्म छोड़ करके दूसरी फर्म में जो है मूव कर जाएगा। तो जहाँ पर भी उसको अपना रेम्यूनरेशन ज़्यादा मिलता है वो वहाँ पर मूव कर सकता है। दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन फर्म टू अदर। नेक्स्ट is the very important feature that is price maker. A firm in the price taker, a firm in the perfect competition is price taker not a price maker. perfect competition में एक फर्म, हमने अभी पढ़ा, प्राइस मार्केट में डिसाइड होती है, इसलिए एक फर्म जो है वो उसका अपनी प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अ फर्म इज़ अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। फर्म जो है उसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करना होता है उसको। दैट्स वाई अ फर्म is price taker not a price maker because firm has no control over its price। प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होने से फर्म प्राइस टेकर होती है, न कि प्राइस मेकर, बिकॉज प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। So a firm sells its output at the given price that is decided by the market. So a firm under perfect competition is price taker not a price maker. Similarly, now these are the some features of the perfect competition. One more feature of perfect competition is that no extra transport cost is there.
buying a commodity from one seller rather than the other does not involve any extra transport cost. कोई भी extra transport cost नहीं लगती है. This ensures that any producer is not able to charge higher price for the product. Only one price prevails in the market. So there is the same transport cost for all the sellers, and there is no extra transport cost. These are some important features of the perfect competition market. This is the first kind of market structure in which we have read that a firm is a price taker, not a price maker. Firm has no control over the price. Firm has to sell its output at the price which is determined by the market. हम इसका एक एग्ज़ाम्पल इसका बहुत रेयरली, परफेक्ट कंपटीशन बहुत रेयरली हमें मार्केट में मिलता है, क्योंकि इस तरह का बहुत रेयरली होता है. बट फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ परसेंटेज में आप सब्जी मंडी में आप जब कभी जाते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का परफेक्ट कंपटीशन आपको मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो इज़ 50 रुपीज़ पर केजी. तो आप अगर फर्स्ट शॉप पर पूछेंगे मंडी में तो वहाँ पर भी टोमेटो वो 50 रुपीज़ पर केजी ही बोलेगा, और अगर आप आफ्टर 5 शॉप्स किसी और से पूछेंगे तो वो भी 50 रुपीज़ पर केजी ही बोलेगा. तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ लेवल तक परफेक्ट कंपटीशन सब्जी मंडी, अनाज मंडी यहाँ पर पाया जाता है परफेक्ट कंपटीशन. और आप एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, लाइक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल की प्राइस डिसाइड हो गई है तो सेम प्राइस पर सारे पेट्रोल पंप डीलर्स उसी पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं. तो दीज आर सम एग्जांपल्स इन विच परफेक्ट कंपटीशन जो है वो हमें कुछ लेवल तक देखने को मिलता है, लेकिन ये एक बहुत रेयर सिचुएशन है. परफेक्ट कंपटीशन जो है वो हमें बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है. सो इट इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दैट वी हैव रेड.